गौरव सर से आई कनेक्टेड फ्यू वीक्स बैक, बट बहुत इन्होंने भी मेहनत की है इस कॉन्फ्रेंस को, इस कॉन्क्लेव को पुट टुगेदर करने में, स्पीकर पैनल को, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीकर। मेरा ना एक जद्दोजहद लास्ट 3 साल से रह रहा है कि मेरे इवेंट में मरीन इंजीनियर्स तो आ जाते थे, कैप्टन नहीं आते थे। तो मैंने बोला भाई इस बार एक कैप्टन ही को बोलते हैं, भाई कैप्टन लेके आओ। जितने भी कैप्टन यहाँ पे आए हैं उनको लाने में मेरा कोई योगदान नहीं है, सब हमारे कप्तान साहब लेके आए। तो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम, and I guess I will hand over the stage to him. Thank you very much, Prateek. Thank you everyone for staying back. It's one of the last sessions of the day. It's been a long day, I realize, and some of the people have left, but I think it's a loss for them that they have missed quite a few sensational presentations and journeys here. I have my friends sitting here, my mentors, my gurus, industry colleagues, people whom I've worked with for many years, the new generation as well, whom I have been mentoring now through Pragmatic Marine Solutions. Essentially, I'm a glorified salesman for the last 16 years, door to door, selling products and services built by smart people like Gaurav Bajaj. तो जो वो बनाते हैं किसी को बेचना भी है, तो मैं वो बेचने वाला आदमी हूँ. So I'm the person who's always calling you, knocking on the door and saying कि please सामान खरीद लो, मेरी नौकरी बचा लो. I'm that guy in the room. Very recently, 1 year back, I started Pragmatic Marine Solutions, again building on what I have learned over the years, my seafaring career of 13 years, then 12 years stint with simulation technology, 3 years stint with SaaS-based platforms for a company in London. And I thought, मुझे कोई CEO बना नहीं रहा, तो मुझे खुद बनना पड़ेगा. So I started my own company, bootstrapped, my own hard-earned money I put into a company called Pragmatic, and I gave myself the designation which has been eluding me for many years. I said कि मैं ही बनूंगा CEO और मैं ही हो जाऊंगा. तो इसका एक और रीजन था कि मैंने अपनी बीवी को भी शांत किया कि तुमने किया क्या है इतने साल. मैं देखो मैं CEO बन गया हूँ, तो वो भी खुश हुई, चलो कुछ तो बने. वरना वो वही सेलर थे, उनको मैंने सेलिंग भी कराई, काफ़ी खुश रही वो सेलिंग के टाइम भी. और जब मैंने सेलिंग छोड़ी तो मैंने उनको कहा था कि मैं सेलिंग इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मेरा बेटा मुझे अंकल ना बोले. तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा आइडिया, आप सेलिंग छोड़ दो. मैंने सेलिंग छोड़ दी और मैं ARI में आया और कुछ ही टाइम बाद मैंने सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट चालू कर दी. तो उसमें क्या होता है कि आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ पुश थिंग फॉर अस. पहले वी हैव टू पुश द कस्टमर टू बाय आवर प्रोडक्ट, and then once you establish the credibility of the product, then the pull happens. तो वो करने के चक्कर में मेरा इतना ट्रैवल हो गया कि मेरी वाइफ कहने लगी कि जहाज पे ही अच्छे थे, कम से कम डॉलर तो ला रहे थे. ये कैसा डिसीजन लिया आपने कि डॉलर नहीं चाहिए लेकिन ट्रैवल 200 दिन ही करूंगा साल में, पैसे मिल रहे हैं इंडियन रुपीज में. मैंने कहा बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बट अब तो जहाज पे जाने से भी डर लगता है. पोर्ट स्टारबोर्ड भूल गया हूँ थोड़ा थोड़ा, और आजकल तो PSC इंस्पेक्शन भी बहुत स्ट्रिक्ट होती है और शोर लीव भी नहीं मिलती 9/11 के बाद, तो जहाज पे तो नहीं जाना है. चलो यही सेल्स एंड BD करते रहते हैं और कुछ तो बन जाएगा. तो फाइनली थिंग्स हैपेंड, became global director sales for ARI simulation, then global director sales for safety SaaS based platform for shipping companies, and one day realized कि अब बहुत ज्ञान ले लिया है, अब थोड़ा देना है. तो अपनी कंपनी खोली and I started consulting for shipping companies, training institutes, academies, universities. I have one of our students here, Nitish, whom I spoke to last week in Chennai at their university about employer-employee relationship. Because I've been at the other end of the spectrum, been an employee for 16 years. In fact, 28 years if you count the sea time as well. I was only with one company, Tanker Pacific, for all the 13 years, cadet to master. So started giving back to the industry, started talking to pre-C students. I am also teaching at a pre-C institute in Bhubaneswar. I run simulation classes, do business development for them. और सब कुछ ठीक चल रहा था, but then mariners को कब अच्छा लगा कि सब कुछ ठीक चले, तो कुछ तो करना है जीवन में और चैलेंज. तो मेरे को शुरू से शौक था पोइट्री का, गाने लिखने का. आई वॉज अ लिरिसिस्ट इन द सेंस मैंने टॉपिंग ऑफ के टाइम VLCC में भी गाने लिखे.
क्योंकि चीफ ऑफिसर थोड़ा सा घबराया हुआ था कि टॉपिंग ऑफ कार्गो जल्दी आ रहा है, जबकि 1-1 सेंटीमीटर आने में 10-15 मिनट लगते हैं पीएलसीसी में कार्गो आने में, तो वो 2 घंटे पहले भेज देते थे एमएमसी के साथ। अब 2 घंटे बैठ के कैडेट क्या करेगा, तो कुछ लिख ही लेते हैं। अब एमएमसी पे अलार्म तो लगा ही हुआ है, आ ही जाएगी आवाज़, तो वो भी करा था। देन आई थॉट कि आई विल डू समथिंग इन द कोविड टाइम्स, जब थोड़ा रिलैक्स हो गया था ट्रैवल, सो आई काइंड ऑफ हैपन टू प्रोड्यूस 8 यूट्यूब वीडियोस, the songs which have been written by me and sung by a YouTube singer who has about 1.5 million followers, and we kind of commercialized our YouTube channel. तो कोविड में बहुत लोगों ने YouTube से पैसा कमाया है, हमने पैसा नहीं कमाया ज़्यादा, बट अपनी इच्छा पूरी करी कि चलो गाना लिख दिया हमने और गाना एक YouTube वीडियो बन गया। बट आज तक अच्छी बात यह है कि अगर कोई सुनता है उस गाने को तो कुछ सिक्के गिर जाते हैं हमारे अकाउंट में, तो वो एक एक्साइटमेंट बनी रहती है। तो वो भी हो गया। अब आगे क्या, तो फिर स्टोरी राइटिंग शुरू करी, स्क्रीन प्ले लिखे 1-2 मूवीज़ के, कई लोगों को कांटेक्ट किया कि देखो ये स्टोरी है, इसको पब्लिश कर सकते हैं आप, इसको बुक में कर लीजिए, इसका कुछ शॉर्ट स्टोरी बना लीजिए, और हर जगह बहुत ज़बरदस्त लात पड़ी कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है। तो ठीक है जी, तो काफ़ी कोशिश करी कि कोई हमारे लिए कुछ पिक्चर बना दे, हमें मौका दे दे। बहुत ही डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री थी, तो किसी ने हेल्प नहीं करी, तो हमने सोचा कि हम खुद ही प्रोड्यूसर बनते हैं। यहाँ भी हमने खुद ही डिसाइड किया कि अब खुद ही करना पड़ेगा, कोई हमारी हेल्प कर नहीं रहा। So I started a movie production house just 3 months after I started my Pragmatic Marine consultancy firm. तो ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए हेडक्वार्टर से इजाज़त लेनी पड़ती है। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि हम एक मूवी प्रोडक्शन हाउस शुरू करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा तुम्हारे सर पे माता आ गई है। पहले तो मुझे लगा वो माता जी को कुछ कह रही है, बट देन आई रियलाइज शी इज सीरियस कि ऐसी बात कर रहे हैं। मेरे पति देव अभी मतलब नौकरी छोड़ी है और अभी एक कंपनी चालू करी है और अब दूसरी कंपनी खोलने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, वो भी ऐसी स्पेस में जो कि उनके मुंह से निकले हुए शब्द बड़ी गंदी स्पेस है, आप तो अच्छे इंसान हो। मैंने कहा हाँ बात तो आपकी सही है, आप दुनिया का मानना तो यही है कि बड़ी गंदी स्पेस है, बट कोशिश की जा सकती है, अच्छे लोग भी वहां सर्वाइव कर सकते हैं, कर रहे होंगे, हमें अच्छे लोग ढूंढने। तो मैंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर किया मुंबई में, विक्रोली में। नोएडा से उसे ऑपरेट करता हूँ, सेक्टर 132 से। और एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई इनफैक्ट कुंभ मेला जो 142nd एडिशन जो अभी हुआ था लास्ट ईयर, उसमें अघोरी बाबा पे एक 27 मिनट की डॉक्यूमेंट्री पहले बनाई, जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स कि ये होता क्या। अब मरीनर है, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, कभी कैमरा पकड़ा नहीं, लेकिन प्रोड्यूसर बनना है। तो जाके सब जो छोटे बच्चे जो फिल्म स्कूल से निकले हुए पढ़े लिखे बच्चे, उनसे सीखा कि FX7 FX9 कैमरा क्या होता है, एडिटिंग क्या होती है, VFX क्या होता है, म्यूजिक क्या होता है, मिक्सिंग मास्टरिंग में फ़र्क क्या होता है। काफ़ी ज्ञान उनसे लिया, क्योंकि मैं पढ़ाई में थोड़ा नालायक हूँ, तो मैं पढ़ाई कभी नहीं कर पाया। आज भी मास्टर्स का लाइसेंस है, लेकिन डिग्री कोई नहीं है, 12वीं पास हो। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द लर्नड पीपल हियर, ओवर क्वालिफाइड पीपल हु आर रनिंग ब्यूटीफुल बिजनेसेस, आई एम थोड़ा सा मिसफिट इन दी एंटरप्रेन्योर स्पेस, कि मैं काइंड ऑफ अ गवार एंटरप्रेन्योर अपने आप को बोलता हूँ, कि मेरे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट की भी, कभी MBA किया नहीं, लेकिन 16 साल सेल्स कर ली और पहुँच गए एक लेवल पे, भगवान की कृपा थी, सीखते गए और करते गए ऑन द जॉब। सेम थिंग आई थॉट कि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में भी चल जाएगा, सीख सीख के कर लेंगे। बट नाउ आई स्पेंट अबाउट 1.5 years इन दी फिल्म इंडस्ट्री, and it's a very expensive learning exercise for me. तो इसके लिए आज भी हमारी वाइफ हमें सुनाती है कि देखा मैंने कहा था ना कि तुमसे ना हो पाएगा ये। डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद आई मेट फ्यू स्टूडेंट्स एट अ फिल्म स्कूल, जो इनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं फिल्म स्कूल्स के, सो दे मेक शॉर्ट स्टोरीज टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन, एंड इफ दे विन दे गेट 1 lakh rupees, 2 lakh rupees as awards. And 4 or 5 people, they pick up cameras, music, everything, and they make short stories. तो मैं उस फिल्म स्कूल में गया था टैलेंट ढूंढने के लिए, चीप टैलेंट ढूंढने के लिए। I cannot afford the likes of big directors, big music directors. I couldn't do that. तो मैंने सोचा फिल्म स्कूल से इंटर्न्स उठा लेते, सस्ते में काम हो जाएगा। जब मैं फिल्म स्कूल में गया तो वो बच्चे थे, उनका फ्रेशर एकदम, मतलब लास्ट ईयर उनका चल रहा था, एंड दे वर फुल एंथुसियास्टिक कि कुछ बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर एक शॉर्ट स्टोरी बनाते हैं, मात्र 12 मिनट की एक शॉर्ट स्टोरी बनाई, और मेरा गुड लक या उनका गुड लक, दैट वन दी अवार्ड।
और वो शॉर्ट स्टोरी मैंने प्रोड्यूस कर दी। बहुत ही कम पैसे थे उस टाइम के लिए, 2-2.5 लाख रुपए लगे थे और वो शॉर्ट स्टोरी बन गई थी 12 मिनट की, एंड इट वन दी अवार्ड, और वो पूरे 2-2.5 लाख रुपए वापस आ गए अवार्ड से, एंड दैट वाज इट, ब्रेक इवन। मैंने बोला कर दिया मैंने अपने आप को प्रूफ, अब हो गया, मैं बन गया प्रोड्यूसर। वो शॉर्ट स्टोरी बनाने के बाद सब भूल भाल गए, 1-2 महीने 3 महीने लाइफ टेक्स ऑन, कंपनी चल रही है, मरीन काम चल रहा है, एवरीथिंग हैपेंड एज यूजुअल, एंड देन समबडी अप्रोच्ड मी कि सर एक बॉलीवुड पिक्चर बनानी है। तो मैंने फिर हेडक्वार्टर्स की इजाजत ली, मैंने बॉलीवुड पिक्चर बनानी है, तो दोबारा माथा चढ़ गई तुम। अभी तो करा है मैंने, प्रूव करा है कि सब कुछ सही हो सकता है, चल रहा है, अच्छे लोग भी है। तो उन्होंने अलाउ करा, अलाउ तो लेना, मतलब लेना ही पड़ता है, इजाजत तो लेनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा ठीक है बनाओ, कितने पैसे डुबा रहे हो? तो मैंने कहा कि जी ये बजट है, कुछ 70-80 लाख रुपए का बजट है और करते हैं जुगाड़। तो सबसे पहले उन्होंने कहा मेरी एफडी को हाथ मत लगाना। मैं कहा बिल्कुल आपकी एफडी को हाथ नहीं लगाएंगे, अपनी एफडी को हाथ लगाते हैं। तो एफडी तोड़ दी, चलो कुछ करके दिखाना है। एंड देन आई वेंट टू द मार्केट, व्हेन आई से द मार्केट, हमारा नेटवर्क एज मरीनर्स इज ओनली द मरीनर्स। जितने भी यहाँ बैठे हैं कुफरी प्रोस्पेक्ट्स, जितने भी अभी बचे हैं सुबह से अब तक, हमने भी कहा कि हम तो मरीनर्स के पास जाएंगे। पैसे उन्हीं के पास हैं, एलपीजी एलएनजी पे सेल कर रहे हैं, $15,000 कप्तान ले रहा है, उसके खर्चे 5,000 के भी नहीं है, बाकी का 10 मुझे दे दे किसी भी तरह। तो काफी लोगों के पास गए, बैचमेट्स, प्रीसी, इनफैक्ट हमारे एक इन्वेस्टर बैठे हैं यहाँ पे, अभी अभी एआई पर ज्ञान भी देकर गए हैं, वो हमारे बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं। लेकिन जहाजियों का एक होता है कि हार्ड अर्न मनी है, खून पसीने की कमाई है, तो लॉस नहीं होना चाहिए। तो जब मैंने लोगों से पैसे मांगने शुरू किए, सबने ऑफर तो किए, बट ये कहा देखो ये जहाज पे मतलब मैंने पाना रस्सी पकड़ के कमाए, तो इनको डुबाना मत। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि ये शुरू ही डुबाने से होती है। अब मैं उन्हें कैसे बोलूं, अब एथिक्स की बात हो रही थी सुबह, एथिक्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी की, अब मैं किसी इन्वेस्टर को कैसे बोलूं कि जो तू मुझे दे रहा है ना, उसकी वापस आने की इच्छा मत, नेकी कर और दरिया में डाल। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि देख दोस्ती में दरार आ जाएगी अगर पैसे वापस नहीं आए तो। मैंने कहा ठीक है, सारा रिस्क मेरा, आपको विद इंटरेस्ट पैसे वापस। और सो आई स्टार्टेड पेइंग माय इन्वेस्टर्स 12%, which is a reasonable return on liquidity, saying कि every month you will get the 12% per annum के हिसाब से, and your principal stays with me, which you can take from me after 16 months. एक मूवी का gestation period is 16 to 20 months. जो पिक्चर आप हॉल पे देख रहे हो वो अभी नहीं बनी, वो 2 साल पहले बनी। इतना टाइम लगता है एक पिक्चर को बनने में। There is a huge process. I have now had the good fortune of learning that process through an expensive learning exercise, as I tell you. But it's amazing, and we feel we can move the world. ये different world. As mariners, we thought we know project management, we know people management, we know how things can be done, can be handled. Try this beast if you want to come. ये बिल्कुल ही अलग है. This will break you as a person and as a professional. Correct? And that is why the feeling and the perception कि ये गलत इंडस्ट्री है, ये गलत नहीं है. It's very challenging. इसमें सीख बहुत है और हर सीख के पैसे, चैलेंज वहां आता है. It's very hard to part with your hard-earned money just to learn something. हम ऐसे लोग हैं जो एक छोटा सा 50,000 का कोर्स भी नहीं करेंगे if it is enhancing our professional or personal skills. ये क्यों करना है, चल तो रही है ना. तो यहाँ you spend crores just to learn something, how things can be done and cannot be done. So that's why I call it a very expensive learning exercise. I would like your attention to this last photo जहाँ मैं ही खड़ा हूँ, बैठा हूँ in fact. So somebody was talking about that we think off our feet and we can manage everything. I have become an actor here in this movie, my own movie, and this is not by design. This is by chance. So the junior actor who was supposed to perform this role backed out at the last moment when the set was ready. To put a set for a movie, this is a courtroom scene. To put a set for a movie, it's 2 or 2 lakh rupees per day. Per day. This is an 8-hour set. Okay. So if I have to put this set again tomorrow, bring the same junior actors, the cameraman, the lightman, the khana, it's 1.5 lakh rupees. To save that 1.5 lakh rupees, I told the director कि कितने डायलॉग हैं? 10 है सर.
मैं याद करता, मैं करूँगा। And I have, you see me in a suit. I have just come back from meetings in Mumbai for my last company, Hilo, which I was selling the software for, and the movie was being shot in Mumbai. So I just come back from the meetings in the evening, and I've sat on this, did a makeup thing in the vanity van, learned the dialogues, and delivered this shot to save 1.5 lakh rupees. Correct? So these kind of challenges, we can, as mariners, we can think how it can be managed. I'm not saying कि ये एक अलग instance है. I've met different people. You see this poster Chaya. I'm not going to talk about marine that much. Most of us know me here with the marine side. You see this poster Chaya. This is madness. This is a Bhojpuri movie. This is pure madness. So, short movie, documentary, Bollywood feature, and then suddenly Bhojpuri movie बना दी. So, भोजपुरी का भोज ना पूरी कुछ ना पता, ठीक है? लेकिन क्यों बनानी है? क्योंकि किसी ने कहा कि वहां सब्सिडी मिलती है. So whatever you spend, 50% of that is covered by the government, state government, provided 80% of your crew belongs to UP. ओके जी, बढ़िया चीज है. 50% पैसे तो गवर्नमेंट देगी. इतना सुन के, not doing any research, no planning, went to खुशीनगर, गोरखपुर. वहां के कुछ डायरेक्टर और टीम पकड़ी और मैंने कहा शुरू करते हैं. बोले ठीक है, शुरू करते. करते 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 9 महीने लगे इस पिक्चर को बनने. 9 months, जिसमें शूटिंग टाइम सिर्फ 22 दिन का है. 22 days of shooting time. Rest everything is pre-production and post-production. Okay, music. इस वक्त ये मूवी सेंसर बोर्ड के पास है for approval, which will take another 3 months. ऐसा क्या है सर, मैं बताता हूँ इस मूवी की खासियत है एक चीज. तो ये मूवी जब आएगी, दिस विल प्रोबेबली बी द फर्स्ट मूवी इन द लास्ट 5 years इन भोजपुरी सिनेमा जिसमें एक भी आइटम नंबर नहीं. अभी सेंसर में डालिए. So this is the unique thing of this movie. It's a clean भोजपुरी मूवी for a change. ठीक है? तो अब ये कॉन्सेप्ट मैच नहीं कर रहा है भोजपुरी से. करेक्ट? तो मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा, सर क्या कर रहे हो, पैसे डुबा रहे हो, आइटम नंबर तो एक नहीं 3 डालेंगे. सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे घर वालों ने भी देखी है, उनको भी दिखानी है. तो वो तो सीन पे देख रहे होंगे और वो इमेजिन क्या क्या कर रहे होंगे, वो तो मैं सोच भी नहीं सकता. तो मैंने कहा देखो आइटम नंबर तो नहीं डालेगा, जो है साफ सुथरी बनवा लो, जो है करवा लो, यहीं पे करके रख देते हैं. सो ग्लैडली दे एक्सेप्टेड बिकॉज आई वाज पेइंग द मनी और मेरे इन्वेस्टर्स के पैसे हैं. सो दे एक्सेप्टेड एंड दिस मूवी शुड रिलीज अनदर 4 to 5 months. Correct? So all 4 projects are ready for release. Now I have to again do my sales choga and go to OTT channels, bigger production house and sell this. My investors need their money back. The 16 to 18 months deadline is coming to a close. Correct? So I have very nicely offered them, इसको extend कर देते हैं, पैसे तो आ ही रहे हैं आपके पास. तो वो भी दोस्त यार हैं, तो वो भी कह रहे हैं हाँ कोई बात नहीं, जाजपुर में कर ले कोई दिक्कत नहीं, पैसे तो आ ही रहे हैं. तो किसी ने मुझसे पूछा आपने दोस्तों से पैसे उठाए, रिलेटिव से पैसे नहीं उठाए? मैं कह रहा हूँ रिश्तेदार पैसे देते हैं ना, फिर वो लेते भी बहुत. उसको समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ. समझाना पड़ा मुझे कि रिश्तेदारों से पैसे नहीं लेने चाहिए, फिर वो लेना शुरू कर. यार पैसे मैं नहीं और. तो मेरे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सब मरीनर्स, कोई भी आउट ऑफ मरीन इंडस्ट्री नहीं, या तो सेलिंग है या शोर पे सेटल्ड है. एंड इट्स प्योरली बेस्ड ऑन ट्रस्ट. 2 पेपर हैं कागज के, 2 पेपर साइन कराए हैं जिसपे नोटराइज्ड है. उतना ही बस कि जी हाँ आपने पैसे दिए थे और 16 से 18 महीने के लिए लॉक है, उससे पहले मांगना मत. अगर इमरजेंसी हो जाए तो 2 महीने का नोटिस देना फॉर इंजन. मेरे इंजन को स्टार्ट होने में 2 महीने लगेंगे क्योंकि पैसा तो लग चुका है. तो ट्रस्ट पे चल रहा है, क्रेडिबिलिटी पे चल रहा है. एंड दैट इज व्हाई आई अप्रिशिएट द मैरीटाइम इंडस्ट्री कि क्रेडिबिलिटी, चाहे कैसा भी आदमी हो मरीनर में, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि 95% तो क्रेडिबल आदमी है. तो जो इन्वेस्टर्स है ना उन्होंने मांगे ना मैंने ऑफर किए
कि जो वादा है 16 से 18 महीने का उससे पहले बात मत करना। जिस दिन आपका इंटरेस्ट ना पहुंचे उस दिन हड़का देना कि जी इंटरेस्ट नहीं पहुंचा। सो ये मेरी जर्नी रही है एज एन एंटरप्रेन्योर इन द फिल्म इंडस्ट्री। ये मेरे लिए आसान है मैरिटाइम करना, क्योंकि ये मैं करता आ रहा हूँ 28 साल से। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था और ये बहुत बड़ा टीचर है। तरह तरह के लोग, आप यूपी, कानपुर, गोरखपुर, कुशीनगर के लोगों से बात करिए सर, आपको बता देंगे वो कि आप कुछ भी नहीं मतलब वो जो जीवन की सीख आपको देंगे ना, वो आपको कोई एमबीए, कोई फिनिशिंग स्कूल नहीं दे। आप उनसे बस बात करके देखिए। एंड एथिक्स नाम तो कभी सुना ही नहीं है। And you should choose an investor who relates to Kanpur. सर मैं बता रहा हूँ कि मतलब उनसे जितना मैंने सीखा है जीवन में, मतलब मुझे बदल दिया हो एज एन इंसान, मेरी सोच बदल दी होगी। सर आप क्या बात कर रहे हो, ये काम तो 10 रुपए का है। ठीक है 10 रुपए अच्छे लगे, 10 रुपए। सर ये काम पे 100 रुपए लग चुके हैं। अरे आपने 10 रुपए का कहा था। अरे नहीं सर आप देखिए ना, बारिश हो गई, सेट भीग गया, उसे सुखाया, कैमरा चला गया, फिसल गया कैमरामैन, कैमरे को चोट लग गई, कैमरा रिपेयर होगा। इन चीजों को आप वेरीफाई नहीं कर सकते। खाना हीरोइन का खाना छोड़ो, उसकी माँ का भी खाना चाहिए। अगर चाइल्ड एक्टर हैं तो उनकी जो पेरेंट्स हैं उनको भी आपको टेक केयर करना है। बच्चे को तो टेक केयर करना ही है। मैंने इस सेट पे बच्चा खिलाया क्योंकि जो केयर टेकर था वो चला गया। अब अगर आपको रोकना है किसी को तो बच्चे को खिलाना पड़ेगा कि भाई मैं तुझे खाना खिलाता हूं, तू बैठ, तेरी मम्मी शॉट दे रही। सो ये जो लर्निंग्स हैं ये सारी ऑन द जॉब, विदाउट एनी स्कूल, फिल्म स्कूल वगैरह कुछ नहीं, सब कर करके सीखा है। एंड अब मैं इस पे ज्ञान बांट सकता हूं। तो नाउ आई गो टू मुंबई, स्टे इन दोस शेडी होटल्स इन वर्सोवा, बिकॉज बजट्स का इशू हमेशा रहता है, करेक्ट, एंड मूव अराउंड इन दैट नेटवर्क, meet these fantastic stars, correct, click a picture with them, share that forward कि मैं भी कुछ हूँ, correct, so don't take me lightly, I am also a producer now। ये बोलने के लिए जीवन भर की कमाई लग चुकी, that's it, और कुछ नहीं है। only thing is कि the return which will come from here, if it comes, क्योंकि पहले प्रोजेक्ट्स में रिटर्न भी नहीं आता सर, रिटर्न बाद में आते हैं। कोई भी बिजनेस में 3 साल, 5 साल, 15 साल का आपको लेके चलना पड़ता है। बट वट एवर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम हियर, देयर इज वन इन्वेस्टर ऑफ माइंड हु नेवर आस्क्ड मी कि कितने पैसे चाहिए और कब तक चाहिए। ही इज द ओनली इन्वेस्टर हु आई हैव प्रॉमिस्ड अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द मूवी, नॉट प्रॉफिट, क्योंकि मैं इतना स्मार्ट हो गया हूं कि प्रॉफिट तो मैं दिखाऊंगा ही नहीं, लॉस ही हो गया पिक्चर में तो मैंने उसको रेवेन्यू का 5% प्रॉमिस किया। बाकी सब इन्वेस्टर्स completely at no risk है because they are getting their interest every month। एक यही आदमी जिसके पास इंटरेस्ट भी नहीं जा रहा क्योंकि इसने कभी पूछा ही नहीं कि क्या कर रहे हो इस पैसे का। So he is the only one who has stakes, ownership in the movie, kind of 5%। तो कल को ये मूवी शायद बिक जाए अच्छे में तो he will make more money than the interest। So ये जो जर्नी रही है ये इनक्रेडिबल रही है मेरे लिए, and this is the journey I want to share कि करने को कुछ भी कर सकते हैं provided you have the conviction, passion। मेरे लिए ये पैशन और मैडनेस वाली थिन लाइन है कि पागलपन है कि पैशन है, कंफर्म नहीं कर पा रहा कोई कि ये क्यों किया है जीवन में, सब कुछ सही चल रहा था। बेटा 12th पास करने वाला, रॉन्ग टाइमिंग, नोबडी इज एबल टू अप्रिशिएट कि ये टाइमिंग कैसी है। मैं बोल रहा हूँ अगर अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा। ये अभी टाइम है कि मैं कर सकता हूँ, इसके बाद तो सब कुछ सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ ही चल सकता है। सो मेरा सजेशन न्यू एंटरप्रेन्योर्स को यही है कि if you want to do something, obviously you need help, funding, resources, people, please take that funding, please commit, please put your skin in the game, only then you can try to succeed. If you have nothing to lose, you will never succeed। Thank you very much। Any questions? I know it's a lack of time, but अगर कोई we'll have a tea and networking break। उसके बाद आप लोग सर्टिफिकेट लेके अपने घर जा सकते हैं।
सर ने फिल्म मेकिंग बनाई, फिल्म मेकिंग की बात की तो उसके बाद एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आना भी जरूरी था। तो सर पिच कुछ और करने वाले हैं, कुछ और। तो इनके ना बहुत वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखे, इनके 25-30 हज़ार फॉलोअर भी हैं और काफी वीडियो बनाते रहते हैं शिपिंग लाइफ के ऊपर। हमारे कॉलेज सीनियर हैं, कल तक मैसेज में मुझे सर सर बुला रहे थे, मैं भी उसको बहुत एंजॉय कर रहा था, तो मैंने वो चलने दिया। सो सर इज 2001 पास आउट फ्रॉम DMET, चीफ इंजीनियर होंगे ही, और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, वही कुछ करेंगे सर, और अपना इंट्रोडक्शन अब खुद दे देंगे सर। प्रतीक, सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक कि जो भी ऑर्गेनाइज किया है और जो मेरे बारे में काइंड वर्ड्स बोल रहे हैं। जब प्रतीक का मुझे फोन आया अबाउट दिस इवेंट, मैं उससे पूछा कौन कैंसिल किया जो मुझे बुलाया, बट आई हैव जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड माय जर्नी एज ए एंटरप्रेन्योर। एज ही राइटली सेड, मैंने बहुत सारे अलग अलग एंगल से दुनिया को देखा है। After being a marine engineer, I used the COVID time to produce a web series. तो जो सर स्टेज पे है उनका सेंसर में 3 महीने है, मैं उस स्टेज से पिछले 2 साल पहले गुजर चुका हूँ। मेरा वेब सीरीज MX Player ने रिलीज किया था और मैंने भी शॉर्ट फिल्म्स और म्यूजिक वीडियोस किए हैं। ड्यूरिंग माय टाइम इन कॉलेज, वेस्ट विंग और ईस्ट विंग के बीच में जो जगह होती थी उसे हमने कैप्चर कर लिया था। ड्रमिंग, गिटारिंग, वी हैड ए बैंड, उसको काफ़ी सीरियसली ले लिया, तो काफ़ी कुछ रिलेट कर पाया मैं, ना सिर्फ उनकी स्टोरी से बल्कि सारे लोगों की यहाँ पे जो स्टोरीज है। हम लोग शायद पैरेलल यूनिवर्सेस में कहीं पे सेम ही रास्ते पे चल रहे हैं। दिस इज माय प्रेजेंट पैशन एंड बेबी, यू कैन से। दिस इज अ मरीन मार्केट प्लेस। सो बिफोर कमिंग टू दिस, आई विल गिव यू अ लिटिल So, I have been a good student all through my Sam Altman. I will of course take a timer and try to cover as quickly as possible. I have just edited my version of a big movie, a web series to a short film. मेरा जर्नी स्टार्ट होता है एक छोटे से सिटी पीलीभीत से, जो यहाँ से अराउंड 400 किलोमीटर्स है। और पहली बार जब मैं IIT दिल्ली आया था तो मैंने सोचा था कि यार यही जगह है जहाँ से कुछ हो सकता है, मेरा बड़ा कुछ मैं कर सकता हूँ। I decided at that point of time when I saw that building, which is Road to Sky, which is there in the main building, I saw कि मैंने बाकी सारे पैशन हटा देने हैं। क्रिकेट नहीं खेलूंगा मैं, मूवीज नहीं देखूंगा, 16 घंटे चाहिए तो 16 घंटे पढ़ूंगा, और फिजिक्स को अपना लव बना लिया। और फिजिक्स ने भी क्या कमाल दिखाना शुरू किया कि the kind of magic which physics and later on automation knowledge brought into my marine engineering was really rewarding. It was a both way relationship. मुझे याद है कि ये FMX टैंकर था, TK टैंकर्स में मैं सेकेंड इंजीनियर था, और 15 दिन का एंकरेज के बाद पायलट आने वाला था 2 बजे। तो जब इंजन्स मांगे तो लूप और नॉन फ्लो अलार्म आ गया नंबर 5 यूनिट का। तो कैप्टन कह रहा है, और मल्टीनेशनल क्रू है, कैप्टन कह रहा है कि पायलट विल नॉट एक्सेप्ट, सारा 15 दिन का ऑफ फायर हो जाएगा, $10,000 या $20,000 पर डे का वेसल है, इट विल गोना बी ह्यूज एम्बैरेसमेंट। तो मैंने चीफ इंजीनियर को बोला कि आप मुझे 1 घंटा दीजिए, लेट मी थिंक अबाउट समथिंग। तो मैंने सबसे पहले तो सारे लोग लगाए, डेक के भी लोग लगाए कि चलो स्टोर से निकालो। वो इंटरचेंज करके देखा तो अलार्म भी इंटरचेंज हो गया था, तो ये पता था कि ये फ्लो स्विच में ही खराबी है। तो मैंने कहा कि यार निकालो यार, मिल जाएगा। तो ऐसे टाइम पे मैं आप लोगों से बेट ले सकता हूँ कि आपको स्टोर्स में से सब कुछ दुनिया का मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, लेकिन वो फ्लो स्विच नहीं मिलेगा। वो हमने देखा, अरे हम पे ये भी है, हम पे कोहिनूर डायमंड का रेप्लिका है, हम पे क्या क्या चीजें हैं, लेकिन हमारे पास वो फ्लो स्विच नहीं निकला। अब आधा घंटा बीत चुका, 35 मिनट बीत चुके हैं, बड़ा साहब मुझे देख रहे हैं, कह रहे हैं कि बोल रहे हैं ऑफ फायर कर लें। तो फिर मैं वो अपना पुराना जो स्कूल टाइम का जो एक इंटरेस्ट से पढ़ाई किया था उस पे गया वापस। मैंने कहा कि कुछ तो हो सकता है अभी भी, मतलब हार नहीं मानना चाहिए। जैसे इरोडो के क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको लगेगा ये तो हो ही नहीं सकता,
लेकिन अगर इसका सोल्यूशन है, कोई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं ना। एज ए मरीनर जैसे सबने बात की इनोवेशन की, क्यों नहीं कर सकते? 2 बजे 3 बजे कुछ अटक रहा है, तो मैंने कहा यही मेरा मौका है हीरो बनने का। हीरो बनने का शौक बचपन से, तो यहाँ मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। अब मैं किसी भी को देख रहा हूँ, किसी भी मुझे देख रहा है, मुझे दिखा वहां पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज। मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज तो मैंने अच्छे से पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छे से आता है, अंदर बाहर रात में मैं भोजपुरी में समझा सकता हूँ उसके बारे में। तो मैंने भट्टी साहब को बुलाया, मैंने भट्टी साहब एक पतला वाला स्क्रू ड्राइवर लाओ। वहां पे एक ब्रिज में एक साइड से जो ऑयल फ्लो करता है वो कैपेसिटेंस के थ्रू जाता है। तो हुआ कुछ नहीं था, सेंसिटिविटी वीक हुई थी और वो पोटेंशियोमीटर को हमने थोड़ा थोड़ा एडजस्ट किया, दूसरे आर्म को बैलेंस किया, तो व्हीटस्टोन बैलेंस हो गया और वो अलार्म चला गया। फिर मैंने कहा ऑयल चालू करो, अलार्म गया, ऑयल बंद करो, अलार्म आ गया। अरे आई वाज सो flabbergasted कि मैंने क्या कमाल कर दिया। We saved so $100,000 of money because of this small physics rule or law. So that started my journey for the love of physics, love of education in general, which later on helped me to become a training superintendent with Anglo Eastern. When I was before इसको थोड़ा flashback लेते हैं। कॉलेज से निकलने के बाद, चीफ इंजीनियर बनने के बाद, मैं एज ए रेगुलर प्रोग्रेशन टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बना। तो उस समय तक मैंने एक तरह का शिपिंग फ्लीट देखा था जहां पे बहुत ही ऑर्डरली फैशन में सब कुछ होता था, और सडनली मैं आ गया एक ऐसी कंपनी में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो कि 20-25 साल पुराने जहाज हैं और जो मैंने कभी नहीं सोचा वो हो रहा है। SCI में जब मैंने ये लिया चीफ इंजीनियर प्रमोशन, तो मैंने देखा पहली बार एक मोटरमैन वहां खड़ा हुआ है कंप्रेसर के पास मैनूवरिंग में। मैंने कहा आप कर क्या रहे हो? मैं तो कहता सर मेरा काम यहाँ पे ये है कि जब प्रेशर कम हो जाएगा तो कंप्रेसर चलाऊंगा, जब प्रेशर बढ़ जाएगा कंप्रेसर बंद करूंगा। मैं बत्ती साहब को बुलाया, मैंने कहा कि इनको आप फ्री करो, ऑटो में चालू कराओ उस कंप्रेसर को। तो 2 दिन बाद बत्ती साहब मेरे केबिन में कह रहे हैं सर, वो कह रहा है वही मेरा काम है इस जहाज में, प्लीज वो ठीक मत करना। तो वो सब जो साइड मैंने देखा शिपिंग का, आई वॉज गेटिंग शॉक्स एंड शॉक्स कि ये 2 अलग अलग दुनिया है शिपिंग वर्ल्ड में। मैंने इस तरह के कंपनी ज्वाइन किया सुपरिटेंडेंट की तरह से, तो मैं उसमें भी बहुत जोश में था, क्योंकि पहला जॉब होता है, आपको लगता है कि यार मैं सीख के आया हूँ। और मुझे हमेशा से विश्वास है कि शिपिंग इज ए सिंपल, शिप मैनेजमेंट इज सिंपल बट नॉट इजी टास्क। अगर आप कुछ कुछ चीजें कट टू कट करते जाओ तो शिप्स अच्छे खासे चल जाते हैं। तो मैंने वो चीजें प्लेस कर दी अपने प्लेसमेंट में कि जाते 2 महीने में कि मैं अपने शिप्स को ठीक कर लूंगा। ओनर्स मेरे साथ हैं। एक दिन रात में 2 बजे मुझे कॉल आता है कि सुपरिटेंडेंट साहब, वो जहाज में होल हो गया है, पानी आ रहा है। और मैं रात में नींद में हूँ। मैंने अच्छा एक सीमेंट बॉक्स वगैरह बनाएंगे, देखते हैं क्या आपके पास कुछ सीमेंट है। कह रहा सर सेकंड साहब वहां पैर रख के खड़ा है। अब तक खड़ा रहेगा सेकंड साहब, ये क्या हो रहा है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब वी आर लाफिंग एट इट राइट नाउ बट वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम। फ्रॉम देयर आई रियली इट शुक मी एंड आई सेड कि यार मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा अपनी लाइफ की जर्नी में कि मैं ये सिचुएशन में कैसे आ जाते हैं शिप्स, क्यों, इसकी रूट कॉजेस क्या है। जैसे विनय सर ने भी सुबह कहा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है हमारी कंपनीज में, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस हैं। तो सुपरिटेंडेंट के बाद देन आई सेड कि यार मैं चलो ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट बनता हूँ, टेक्निकल हटता हूँ। मैं एनी विच वेज आई एम एकेडमिक पर्सन, तो लेट्स वर्क विद एंग्लो ईस्टर्न। मैं वहाँ पे सिमुलेटर्स डिजाइन करने लग गया। आई कुड लर्न अबाउट PLC सिस्टम्स, आई कुड लर्न अबाउट the latest systems in HPSCI, balanced water treatment, और ये it was a natural progression, मुझे बहुत मजा आ रहा था। इसके बाद इसके बाद मैं एक जर्नी में देख रहा था कि एक लर्निंग कर्व है कि अगर मैं अपना कुछ करना चाहूँ तो that's where I was screening many ideas and I came across one interview from Zomato's founder. He said that in WhatsApp, he was looking at the WhatsApp in his office where people were asking कि यार डोसा के लिए कोई रेस्टोरेंट बता दो या इसके लिए कोई रेस्टोरेंट बता दो, अच्छा इडली खाना है, अच्छा चाइनीज खाना है। और नून टाइम में उनका ये होता रहता था। From there he got the idea to create Zomato. तो मैंने कहा ये तो सेम टू सेम मेरे भी ग्रुप में हो रहे हैं। मेरे WhatsApp ग्रुप्स हैं जहाँ मेरे सारे सुपरिटेंडेंट फ्रेंड बोलते रहते हैं कि यार वेल्डिंग वर्कशॉप कोई हैम्बर्ग में बता दो, कनाडा में कोई सीजेस वॉल के लिए सप्लाई बता दो, एक इमर्जेंसी जनरेटर रेंट पे लेना है वैंकूवर में बता दो। रोज चलती रहती है ये कहानी। तो मैंने कहा चलो क्या करते हैं, ये तो बहुत ही इजी है, मेरा रास्ता मिल गया, भगवान मुझे कुछ साइन दे रहे हैं। तो मैंने
AI और कोडिंग सीखना शुरू किया अपने फ्री टाइम में। हमारे साथ एक फायदा है ऑल सीफेयर्स के साथ कि हमें भगवान ने एक सुपर पावर देके भेजा कि हमारे पास टाइम है और पैसा भी है कुछ कुछ टाइम के लिए, तो हम जो चाहे कर सकते हैं। इसको मैं बहुत एक बड़ा ब्लेसिंग मानता हूँ। तो मैंने, और दूसरा इसमें एक विचित्र चीज ये है कि जैसे कैप्टन साहब ने फिल्म मेकिंग में क्या क्या चीजें सीख ली जो फिल्म मेकिंग के स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं सीख पाए। कल मैं अपने एक दोस्त से मिला, वो सेकंड में गुरमेल सिंह चहल, मेरे साथ सेल करता था। मैं उसके यार्ड में गया, उसने भी बोट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी डाली हुई है। मैंने कहा गुरमेल तू कैसे बोट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है यार, तू तो अच्छा खासा सेट था, कैप्टन बना हुआ था नॉर्डन में। कहता यार मैंने कहा तुझे क्या मोटिवेशन मिला ये आके? कहता कि यार एक्चुअली मैं बोट ओनर बनना चाहता था, मैंने किसी को पैसे दिए बोट ओनिंग करने के, उसने मुझे धोखा दिया, तो मैंने उससे खोखा वगैरह लेके और खुद शुरू कर दिया बोट मैन्युफैक्चरिंग। वहां से मैं सीख गया कि कैसे बोट मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो वगैरह उसके बाद से मैं अभी वो यूएसएवी बना रहा है, जो ये बोट्स ईरान यूज कर रहा है, जो अनमैन्ड व्हीकल्स हैं जो जाके डेटोनेट होते हैं। ही क्रिएटेड दैट, ही शोड मी इन हिज यार्ड कि एक लंदन का बिजनेसमैन है जिसने यूएसवी बनवाया है उससे, यूएसवी 4 लेवल, जो टोटली ऑटोनोमस है, ड्रोन के जैसे कैपेबिलिटीज के साथ है, जो कह रहा है कि अब मुझे डिफेंस के ऑर्डर्स आएंगे। उसने बहुत बड़ा रिसर्च वैसे मुझे दिखाया, मैं उसकी फोटोज डालूंगा इंस्टाग्राम पे अभी नेक्स्ट वीक में। तो वो मुझे बोला कि एज ए सेकेंड मेट मैंने अलार्म सिस्टम्स बोट के खुद पढ़े। मैंने कहा कि यहाँ पे इतना पैसा क्यों लग रहा है, मुझे सिर्फ अर्थिंग की इंडिकेशन चाहिए एज पर रूल, ये सारा सर्किट हटा दो। तो मैं आई वाज फ्लैबरगास्टेड कि यार इंसान अगर चाहे ना, इफ यू हैव ए स्ट्रांग व्हाई, द हाउ डजंट मैटर। इफ योर गोल इज क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड, द फैक्ट्स वोंट काउंट। और वो चीज मैं अपने साथ नहीं, यहाँ पे कितने सारे लोगों के साथ होते हुए देख रहा हूँ। तो ये सारे नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं यही एक मंत्र देना चाहता हूँ, इफ यू हैव ए स्ट्रांग व्हाई, द हाउ विल नॉट काउंट। क्वैक इज ए मरीन प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म। यहां पे वही हो रहा है जो जोमैटो कर रहा है। ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे कोई भी दुनिया में रिक्विजिशन कुछ भी चाहिए किसी भी शिप मैनेजर को, तो वो फटाफट पोस्ट कर सकता है, विद इन 30 सेकेंड टू 1 मिनट एक रिक्विजिशन बन जाता है। और मैंने इसको लिंक किया है विद वेंडर्स इन दैट एरिया, तो वो जस्ट डायल की तरह अपने आप रिले होता है। उनके व्हाट्सएप पे टोकन आता है और उनके ईमेल पे एक मेल जाता है कि ये चीज अर्जेंटली चाहिए। इसके साथ हमें काफी सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले। जैसे नॉर्मली एक एफडी फैन का ब्लोअर चाहिए था किसी शिप को, वो गुजरात के पोर्ट में आया हुआ था, तो सिक्का में। तो हमें कोड आया था, नॉर्मली अलार्म में जो पुराने ब्लोअर्स रखे थे वो 5 लाख रुपए का एफडी फैन इम्पेलर बोल रहे थे। एंड लकीली बिकॉज मैं ट्रेनिंग स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मेरा अच्छा खासा नेटवर्क है स्टूडेंट्स के साथ। कुछ स्टूडेंट्स मेरे यहाँ भी आए हैं, तो उनमें से किसी एक ने मुझे बोला कि सर मैं राजपुरा में रहता हूँ, फाउंड्री है मेरे घर के पास, वो लोग इसे 35,000 रुपए में बना देंगे ये चीज, आप ड्राइंग भेजो। हमने वो ही 5 लाख रुपए का इम्पेलर 35,000 में भेजा, एंड द शिप ओनर वाज अनबिलीवेबली हैप्पी। हो गया था कि आप क्या कैसे कर रहे हो ये चीज। द आइडिया हियर इज टू डेमोक्रेटाइज द होल प्रोसेस, लेट द डॉलर प्रोड्यूस फुल डॉलर टू द पर्सन हु इज स्पेंडिंग इट। मैंने घर में जब मैं कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम करवा रहा था, तो इलेक्ट्रिशियन बोला कि यार 250 रुपीज का एक बल्ब आएगा। तो 2 मिनट में हमने क्या किया, आप लोग अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होगा, आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? You can go to Amazon and check today, right? If it is a special type of bulb, we found that on Amazon 179 में मिल रहा है. Why will I order from the electrician anyway? It was an old practice, old type of schedule. Now the same thing is happening with Quack, because now you can reach to each and every possible vendor who has opted in for that category. You get your best money for your item which is required. Of course, there are times when we have sold a 3,000 rupee pump for a 30,000 rupee value, but that was when the ship owner himself wanted कि यार कल चाहिए, सैटरडे है, संडे निकल रहा है जहाज, 3,000 रुपए का पंप। वो उस एक वेंडर ने कहा कि ठीक है मैं आज ही शॉप ओपन करके अपना रात में ड्राइव करूंगा, सुबह पहुंचा के आऊंगा, बट दिस इज माय प्राइस। So both ways the ship owners are also benefiting and vendors are also benefiting. So this was an idea whose time has come probably, and from marine industry, I was the one who was blessed by the Almighty to get it implemented. That's where. So this is a live feed which is happening on our app. You can go to quack.app. That is the website's address, qaaq.app.
और /RFQ लिखेंगे तो ये लाइव फीड है, जिसमें जैसे आप देख सकते हैं मॉन्ट्रियल में फ्रेश वाटर सप्लाई चाहिए था किसी को अर्जेंटली, किसी को सिक्योरिटी बोर्ड, अभी हमने स्पेयर्स और स्टोर्स के लिए शुरू किया था, सर्विसेज के लिए शुरू किया था, लेकिन हमें अभी बोट्स के और चार्टरिंग के भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं। जैसे किसी को 15 मीटर का सिक्योरिटी बोट चाहिए 2 साल के लिए चार्टर करने के लिए, और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है। वी शिप्स को एक जरूरत था एक MOT लैडर का 16 मीटर पर्टिकुलर लेंथ का, तो हमने बिकॉज आई न्यू द रियल वेल्डर्स, एल्यूमिनियम वेल्डर्स इन इस्तांबुल, I went to those guys and I put them on extra shift, got that ladder built, and then shipped it to a Italian port via a truck, a minivan. So that in whole was done in record time. The ship sailed out with that MOT ladder. Then of course the PLCs are there, main air compressor, so many categories are there. It is as quick as this. We have been lucky to use the AI in our favor. And now there's a question. Now let's say, what is the one single complaint that ship staff does to the ship manager for stores? क्या लगता है आपको सर? Quality, right? ये इंसान रो जाएगा, परेशान हो जाएगा। हमने सबने सहा है कि हमें कभी यार वो ग्लव्स नहीं मिलते जो टेक्नीशियन पहन के आता है एकदम स्टाइलिश वाले, और बहुत जलती है उसे देख के कि यार हम क्यों नहीं खरीद सकते। उसके पास स्क्रू ड्राइवर अच्छे होंगे, उसके पास मल्टीमीटर अच्छा होगा, हमारे पास फुलके का होगा, उसके पास फ्लूक का होगा। तो ये जो एक प्रॉब्लम था, इसको सॉल्व करने के लिए एक दिन फिर से भगवान ने मुझे कुछ हेल्प किया, मुझे कुछ अच्छे लोगों से कनेक्ट कराया। आई वॉज वर्किंग इन इस्तांबुल फॉर ए पेट्रोब्रास शिप एज ए ड्राई डॉक सुपरिंटेंडेंट. That's when I met a few Danish surveyors who were building on a system called Zulu Code. So it's a very fancy system right now. This our platform is the first one to have been built extensively on Zulu Code. I'll give you a brief insight of it. This code, this is also a free website, zulucode.org. In this, the whole maritime word is covered in 4 alphabets. So you name anything and everything only in 4. Let's say if you talk about a main engine, so main engines are all under system A. Then you go to if you go to these different supplies, services, they also have a code. It's like an IMPA code, but it's the IMPA code of today, because IMPA code had this very big handicap of no brands involved. This is where we brought brands in the system. So if you want to, let's say, find a particular, if you want to find this particular cleaning solution, so you can just write WCHS. That keeps to chemicals. Then it comes to first comes to W is for deck and engine branded stores, then cleaning products, hand cleaners, and then that's the code. So everything in the world that you and me live in has been given a code, and it's only 4 alphabets. So this is particularly helpful for the machine learning, and AI is getting crazy with these codes, because they are the first ones to learn when they are transacting with you in your communication. This is the code map. Let's say if you want to order a Fluke 754 XLFQ is the code. So we are now proposing a PMS system based on this, and I have been an integral part of developing this code. From India, I was the only person. We have in the last 5 months done 290 plus queries. We have done, we have verified vendors for 1000 plus number in various locations across the world. And that's probably that's all about it. So this is my quick story. Of course, we are right now looking for some funding and investment, because this is all bootstrapped. It's my own saving money. Like you made your own film, I made my own application. This has been, by the grace of God, it is already accepted on Apple Play Store and Google Play Store. You guys can download it. You see, there are many other features apart from the marketplace, but this remains our core go-to area. And that's all for me. I think I did it in 9 minutes. राजीव सर, मैं चाहूंगा कि आप आके हमारे लास्ट स्पीकर ऑफ द डे को फेलिसिटेट कर दें।
घबराने की जरूरत नहीं है। मैं वोट ऑफ थैंक्स मेरा है, मैं पूरी कॉन्फ्रेंस को 2 वर्ड में सम कर दूंगा, डाउनटाउन टू फ्री। ऑन दैट नोट, इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। तो मेरा पहला माउंटेन प्रोजेक्ट, पहला MLA, मैं चाहता हूँ कम्युनिटी सपोर्ट करे, और कम्युनिटी यूथ सर जैसे स्टार्टअप्स हो गए, सब हो गए, तो एज ए कम्युनिटी इफ वी आर सपोर्टिंग, वी विल बी द फोर्स टू रेकन विथ इन जनरल। बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है मरीनर्स की। इफ वी डिसाइड टू हंट एज ए ट्राइब, टू हंट एज ए ग्रुप, यू विल बी अनस्टॉपेबल। ऑन दैट नोट, चाय पीते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, घर जाते हैं। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग इन, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम। अब जितने लोग बचे हैं, एक ग्रुप फोटो भी ले सकते हैं ना हम लोग, स्टेज पे चढ़ के, पूरा उपयोग हो जाएगा। स्टेज पे चढ़े जाते हैं ना। Yes. Yes, smile please. Wait, wait. Yes, smile. One more. Yes, sir. That's great. Thank you. Yes.